not to become a person of success, but rather try to become a person of values. On that note, I, Dr. Nidhi Srivastava, Associate Professor, IIEBM, welcome you all for the new session of IIEBM Induction Program for Batch 21-23. Before introducing the guest, very quickly, I will brief you about the flow of the session. Session will be of 1 hour 15 minutes. Their first 55 minutes will be knowledge sharing and rest 20 minutes will be for question and answer. You can type your question in the chat box that will be addressed towards the end of the session. So without wasting much time, I would like to welcome our today's guest, Lieutenant General D.B. Shikatkar sir, PVSM, AVSM, VSM, Member of Advisory Council IIEBM Indus Business School and Honorary Chancellor of Sikkim University. Sir is an infantry officer and has the distinction of commanding a brigade in Punjab, a division in Kashmir Valley, and a corps in Northeast. Sir is a soldier, a scholar, and holds BCom, MSc, MPhil in Defense Studies, PhD in Management Science, PhD in Defense and Strategic Studies. Sir is presently pursuing his third PhD in Psychological Warfare. Sir is also postgraduate diploma in Ecology and Environment, postgraduate diploma in Weapons and Equipment Management, and has been named as Paul Harris Fellowship by Rotary Foundation of Rotary International. A highly decorated senior officer of the Indian Army, Sir was awarded Vishisht Seva Medal for distinguished services in the Northeast, Ati Vishisht Seva Medal for combating terrorism in Punjab and Kashmir, and Param Vishisht Seva Medal for combating terrorism and insurgency in Jammu and Kashmir and Northeast. So let us welcome Lieutenant General D.B. Shikatkar sir. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you for that introduction. Good morning to you all, friends. Firstly, let me welcome you to this wonderful institution which you have decided to join to pursue your higher studies. Just 2 days back, we celebrated our Independence Day on 15th of August. When I was studying in class 3, till then, there was no Jan Gan Man. There was no national flag. India was not independent. We were being ruled that time by Britishers. So our education was totally on a different line. But after independence, things started moving in the right direction. And today you are lucky. You decide your own future. You decide your own career. You decide your colleges. And you decide what stream you will study. We were not that lucky to take decisions. So that is why I say you are the best. You will remain the best till you decide to be second best. So I wish you all the best. God bless you because you are our hope. आप हमारी आशा हैं, आप हमारा विश्वास हैं, आप हमारा भविष्य हैं। यदि आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छी पढ़ाई की, आपने अच्छी सर्विस की, तो आपकी गुणवत्ता से राष्ट्र की भलाई होगी। यदि आपने अच्छा काम नहीं किया, तो ना तो आपके माता पिता, ना आपका परिवार और ना आपका राष्ट्र अच्छे काम कर पाएगा। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस पाठ्यक्रम में लगभग पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन बड़े बड़े राज्यों से भी लोग आए हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये पूना में है। आपके माता पिता जानते होंगे, दिल्ली को हम भारत की राजनीतिक राजधानी बोलते हैं। दिल्ली इज नोन एज पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया।
मुंबई को हम आर्थिक राजधानी बोलते हैं। बॉम्बे इज नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। पुणे, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज नोन एज नॉलेज कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एकेडमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। पुणे जो है ये बौद्धिक राजधानी है, शैक्षणिक राजधानी है, आचारमत राजधानी है। इसीलिए इसको पुण्य नगरी भी कहा जाता है। तो ये आपके माता पिता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे जहां पर हैं वो सुरक्षित हैं, वो सुखी रहेंगे। जिस तरह से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह से आपके बच्चे बच्चियों की देखभाल भी यहाँ की जाती है। और मैं इस संस्था से तकरीबन पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी फैकल्टी, हमारे प्रोफेसर्स, हमारा स्टाफ आपके बच्चों को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, वो IIBM परिवार के एक सदस्य हैं। इसलिए मैं आपको निश्चिंत कराना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की चिंता ज्यादा मत कीजिए, वो छोड़ दीजिए हमारे ऊपर यानी पाठ्यक्रम करने वाले लोगों पर। इसमें दोनों का सहभाग होगा। फैकल्टी जो है हमारी, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो आपको नॉलेज प्रदान करेंगे, लेकिन उस नॉलेज को संपत्ति में परिवर्तित करना ये आपका काम है। आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, आप हो सकता है अगले साल कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेगा, कोई मार्केटिंग लेगा, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेगा। ये निर्णय आपने करना है। पढ़ाई सबके लिए बराबर होती है, सिलेबस सबके लिए एक ही है, परीक्षा सबके लिए एक ही बराबर होती है। पर क्या कारण है कि कुछ बच्चे जो है वो 60% के ऊपर ज़्यादा मार्क लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो कम मार्क लेते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। आपकी गुणवत्ता आप ही को निर्धारित करना पड़ेगी। और इसलिए मैं आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपके माता पिता ने आपको इस संस्था में आने की इजाज़त दी। हो सकता है आपके पिताजी आपके पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों की माताजी ने अपने सोने के जेवरात गिरवी रखे होंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ेगा, बड़ा होगा, कमाएगा और तब मेरे को सोने के जेवरात जो है वो वापस मिलेंगे। ये उम्मीद रखते हैं वो। एक्चुअली इस घर की शोभा जो है वो आप हैं। इसके लिए भी मैं आपका और आपके माता पिता का अभिनंदन करता हूं। 21वीं सदी में जो है शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। मैडम ने आपको बताया कि आप ही की तरह मैं भी विद्यार्थी हूं। मैं भी अपने जीवन की तीसरी PhD कर रहा हूं। लोग तो एक भी PhD नहीं करते हैं, भाग जाते हैं। क्या कारण है कि मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप कमाएंगे। लर्न, जितना आप सीखेंगे बुद्धिमत्ता आपकी उतनी ही बढ़ेगी। और इसलिए पढ़ाई से कभी घबराना नहीं। पूरे भारतवर्ष में केवल कुछ लोग ही हैं जिन्होंने 3 PhD की है। और मेरे गुरु जो थे उन्होंने 6 PhD की थी, 6। और मैंने उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने बोला, मुझे सवाल पूछा, आपको PhD की डिग्री चाहिए या आपको ज्ञान चाहिए? तो मैंने बोला कि सर मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, डिग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। केवल डिग्री हासिल करने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको मेहनत दूसरे प्रकार की करना पड़ेगी। डिग्री केवल ये दर्शाती है कि आप BA हैं, आप BCom हैं, आप BSc हैं,
ऑफ MBA है। पहले ऐसी कहावत थी कि 19वीं सदी ये शक्ति की सदी थी। जिस राजा के पास, राज्य के पास सैनिक शक्ति होती थी, उस शक्ति के आधार पर वो दूसरों पर राज्य किया करता था, दूसरों की कमाई से रहता था वो। 20वीं सदी, जिसमें आप में से बहुत से लोग जन्म आए हुए होंगे, केवल वो जिनका जन्म 2001 के बाद हुआ है वो 21वीं सदी में है, वरना हम सब लोग जो हैं हम 20वीं सदी में पैदा हुए थे। 20वीं सदी जो है यह आर्थिक सदी मानी जाती थी। जिसके पास पैसा होगा वही राज्य करेगा। पैसे के आधार पर लोगों ने डिग्रियां खरीद ली, नॉलेज खरीद लिया, राज्यों को खरीद लिया, राजनीतिकों को खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया उन्होंने। पैसा 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 ही सब कुछ था। आज भी पैसा महत्वपूर्ण है, परंतु 21वीं सदी, जिस सदी के तीसरे शतक में 2021 में आपने जो ये IIBM इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है, ये जो सदी है ये नॉलेज पावर है, ये बुद्धिमत्ता की सदी है। द मोर नॉलेजेबल यू आर, द मोर पावरफुल यू विल बी। बुद्धिमत्ता के आधार पर, शिक्षण के आधार पर आप सशक्त होंगे। और ये जो शिक्षण है ये केवल आप ही अर्जित कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि यार आज मेरा सर दर्द है, तू क्लास में बैठ जा, कल मुझे बता देना क्या पढ़ाया था। वो ये बताएगा कल गणित पढ़ाया था, साइंस पढ़ाया था, मार्केटिंग पढ़ाया था, पर उसका जो अर्थ था वो आपको कैसे पता लगेगा? वो तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। और उसका कारण है कि 21वीं सदी की एक कहावत है, ये पहले भी थी हमारे भारतवर्ष में, आज भी है, आगे भी रहेगी। स्वदेशे पूज्यन्ते राजा, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा उसके राज्य में होती है, पर विद्वान जो है वो पूरे विश्व में पूजा जाता है। डॉक्टर कलाम, डॉक्टर माशेलकर, स्वामी विवेकानंद जी, आप नाम लीजिए, ये सब विद्वान लोग थे। और यही धोरण आपको भी लेना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड टू बी नॉलेजेबल, ओनली देन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड, नॉट अदरवाइज। आज पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं तो भारत की जनसंख्या जो है सबसे तरुण जनसंख्या है पूरे विश्व में। यंगेस्ट student population in the world is in India. Largest number of the girls or the ladies educated graduates in the world are in India. Largest number of the population may be in other countries, but only 15% are educated people there. केवल अंग्रेजी समझने से एजुकेटेड हैं ये नहीं मानते। अब विश्व के अनेक देशों में हमारे भारतीय विद्यार्थी, भारतीय प्रोफेसर, भारतीय शास्त्री ये काम कर रहे हैं और अपना नाम ऊपर कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT, ये USA, चाइना, जापान और भारत, इन चारों राष्ट्रों में ही चलती है। यदि आपने कंप्यूटर नॉलेज, IT नॉलेज एकत्र किया तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में काम करने का मौका मिलेगा। आज अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सब के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब भारतीय लोग हैं। भारतीय, केवल भारतीय मूल के नहीं, भारत में पढ़कर जो वहां काम करने के लिए गए हैं। उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर उन्हें काम मिलती हैं। और यह तभी संभव होता है जब हम मेहनत करते हैं। मैं आपको नाम देता हूं,
पीएनजी जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं नाम की जो कंपनी है अमेरिका में, अभी एक भारतीय तरुण वहां पर गया है। उसकी महीने की जो तनख्वाह है वो 4 करोड़ रुपया है, एक महीने की तनख्वाह। विजयवाड़ा का रहने वाला है और यहीं से उसने एमबीए करके वो गया है अमेरिका में। तो आप भी कभी ये मत समझिए अपने आप को, अरे मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैं तो फलाने गांव का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी तो किसान हैं, मेरी माँ तो कपड़े सीती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं और आप क्या करेंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप क्या करते हैं ये इस बात पर निर्भर होगा कि आप अभी अगले 2 साल में, जो इस साल से लेकर के 2023 तक जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप कितनी मेहनत करते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। भारत में देखिए 35 करोड़ 350 मिलियन 35 करोड़ विद्यार्थी भारत में हैं और उनमें से आप भी हैं, आप भी उनमें से हैं। इन 35 करोड़ में से 350 मिलियन जो हैं, 35 करोड़ में 52 करोड़ हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं। जो पुरुष स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो केवल 48 करोड़ हैं। ये क्या दर्शाता है कि माता पिता अपनी बच्चियों को पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं। आज जितने भी ग्रेजुएट हैं, मैंने आपको बताया, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय महिलाओं की है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और इसीलिए आप देखिए केरला, मिजोरम, ये छोटे छोटे जो प्रांत है हमारे राष्ट्र में, 100% लिटरेसी है। ये गुणवत्ता की बात होती है हमारे लिए है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूना ये एकेडमिक कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। यहां आविष्कार किए जाते हैं, मिसाइल बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसके आधार पर हम अंतरिक्ष की खोज करते हैं वो पूना में है। दुनिया के सबसे ज्यादा मॉडर्न कंप्यूटर जो है परम जिसको हम बोलते हैं, वो पूना में बना हुआ है। जो हमारे अंतरिक्ष यान जो जा रहे हैं उसका 80% भाग पूना में बनता है। ये कौन बनाता है? मेरे शरीर का बूढ़ा आदमी नहीं बनाता है, ये आपके शरीर के तरुण लोग बनाते हैं इनको। और इसलिए आपने जो निर्णय लिया है वो उचित लिया है इस इंस्टीट्यूट में आने का। अभी 2 साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट छोड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की। और वो सैटेलाइट जो है, जितने पैसे में आप एक फिल्म बनाते हैं बॉलीवुड में, उतने में उन्होंने सैटेलाइट ऊपर भेजा। उसमें 52 देश, दुनिया के बड़े बड़े समृद्धशाली देश, उनकी टेक्नोलॉजी उसमें है। हम उनसे पैसा लेते हैं। ये वास्तविकता हमें ध्यान रखना पड़ेगी। 1 बिलियन, माने 100 करोड़ मोबाइल फोन भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं, 100 करोड़, और इनकी संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। 35 करोड़ इंटरनेट सेट काम कर रहे हैं। तकरीबन 52 करोड़ लैपटॉप इंडिया में काम कर रहे हैं। अभी मैं भी आपको उसी के माध्यम से बोल रहा हूं, आप भी उसी के माध्यम से सुन रहे हैं। 52 करोड़ हैं अभी हिंदुस्तान में, और इनकी संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन जो हो रहा है, जो बच्चों को लेकर के प्राइमरी स्कूल से लेकर के तो ग्रेजुएशन में, उनमें इनकी संख्या बढ़ेगी। जब ऐसी बातें होती हैं तो उससे हमें काम के मौके भी मिलते हैं, और उसके लिए हमें बुद्धिमत्ता हासिल करना पड़ती है, टेक्नोलॉजी हासिल करना पड़ती है। जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फोन है,
उनको बेचने वाले कौन हैं? हमारे आपके तरीके ही तरुण लोग काम करते हैं उस पर मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्लीज 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 एक दिन में आधा घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबको हाथ मत लगाएं आप, यह आपको तबाह कर देगा, यह आपको तबाह कर देगा। ये मोबाइल फोन जो है, ये सबसे खतरनाक चीज जो है ये बनी है। इसलिए आधा घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत कीजिए। कॉलेज की शिक्षा में जब आप जाते हैं तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे मत रखिए, आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ट्रेन में, कॉलेज में, पढ़ाई के समय आप मोबाइल को साइलेंट मोड कर सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल से निकलने वाली किरणें जो हैं वो साइलेंट नहीं होती हैं। और तकरीबन 88% लोग जो हैं बाएं हाथ से मोबाइल फोन बाएं कान तक इस्तेमाल करते हैं, दाहिने हाथ पे कम करते हैं लोग बात। और इसी कारण आप देखिए मस्तिष्क में होने वाली बीमारियां जो हैं वो बाएं तरफ मस्तिष्क से ज्यादा होती हैं। कैंसर होता है। कोई मोबाइल कंपनी आपको ये नहीं बताएगी कि अगर आपने दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल किया तो 35 साल की उम्र में आपको कैंसर होगा, ब्रेन में ट्यूमर बढ़ेगा। कोई कंपनी नहीं बताएगी आपको, क्योंकि ये जो है ये लाइन के आधार पर काम नहीं करता है, ये किरणों के आधार पर काम करता है, रेस के आधार पर काम करता है। और अंतरिक्ष से आने वाली रेस, इलेक्ट्रॉनिक रेस जो है वो आपके कान में जाती है, बाएं कान में, और उसके माध्यम से आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो यदि आपको जिंदा रहना है, तरक्की करना है, तो आप मेरी बात मानिए, मोबाइल फोन एक दिन में आधा घंटे से ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए आप। और ये मेरी विनती आपके माता पिता से भी है। साइलेंट मोड पे रखना, ये साइलेंट आप किसको बेवकूफ बनाते हैं? आप खुद के साथ बुद्धिमत्ता की बात नहीं करते हैं। और इसलिए पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो अपने विषय पे ध्यान दीजिए आप। जैसा हम बोलते हैं, ई जो है वो होता है शुरू एजुकेशन से, इंटेलिजेंस, इसको हम बोलते हैं नॉलेज। के जो है उसको भी हम बोलते हैं नॉलेज। के से बनता है KNOW, नो, माने जानिए, और खाली के निकाल दीजिए तो आपका बच जाएगा NO, नो, कुछ भी नहीं है। सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। इफ यू आर नॉट नॉलेजेबल पर्सन, ओनली डिग्री विल नॉट गिव यू जॉब। लेट मी बी श्योर ऑन दैट। और इसलिए जो हम बोलते हैं कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी दिनचर्या, ये अच्छे प्रकार की होना चाहिए। अगर आप सवेरे 9 बजे उठते हैं सो के, हॉस्टल में रहते हुए, और 10 बजे आप क्लास में आ जाते हैं, तो आप मेरी बात का विश्वास मानिए, आप दोपहर को 3 बजे तक सोते ही रहेंगे। अगली बात जो है आप ध्यान में रखिए कि डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। नॉलेज विहीन व्यक्ति, बुद्धिविहीन व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है। और ये बात आपको इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। अगली बात जो है कि नॉलेज के साथ साथ, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान का भी महत्व समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी मोबाइल कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए, तो इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछेंगे इस मोबाइल का चिप कहाँ बना हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये नहीं पूछेंगे। वो काम टेक्नोलॉजी वाले करते हैं, लोग बाग हैं।
आपसे पूछेंगे हिंदुस्तान में कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में कितनी कंपनियां मोबाइल बनाती हैं, कौन सा मोबाइल किस प्रकार का है, स्मार्टफोन और आईफोन में क्या फर्क है, ये बातें अगर आपको नहीं पता है तो खाली डिग्री लेने से मार्केटिंग में आपका फायदा नहीं होगा। तो सामान्य ज्ञान जो है वो उतना ही आवश्यक है और वो आपको पुस्तक के नॉलेज से, डिस्कशन के माध्यम से और फैकल्टी के माध्यम से मिलेगा। एक कहावत है अपने यहाँ, जो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के होंगे बच्चे हमारे या बेटियां, उनको पता होगा। अपने यहाँ कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भयान पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का अर्थ प्रेम नहीं है, प्रेम का अर्थ होता है 2.5 अक्षर, गर्भ, जन्म, शिक्षा, दीक्षा, मोक्ष, मृत्यु, कर्म, ये जितने भी हैं सब 2.5 अक्षर के बने हुए हैं। जिस दिन आपने इन 2.5 अक्षर का महत्व समझ लिया, उस दिन आप महान महान महान, इवन योद्धा को भी 2.5 अक्षर का ही बोलते हैं। मृत्यु को भी 2.5 अक्षर है, जन्म को भी 2.5 अक्षर है, मुक्ति को भी 2.5 अक्षर है, मोक्ष को भी 2.5 अक्षर है। तो इसका महत्व आप समझिए। आपको फैकल्टी रोज पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आपसे बता रहा हूं कि आपने क्या करना पड़ेगा। रोज सवेरे 4:30 बजे उठ के आधा घंटा आप प्राणायाम कीजिए, दीर्घ श्वास लीजिए, आप फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। आप अगर आपको दीर्घ श्वास लेने की आदत है, आपको कोरोना नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास से दिलाता हूं। मुक्त हवा में निकलिए आप, और जो आपको बताया जाता है मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, वो तो करना ही करना है, लेकिन श्वास जो है वो आवश्यक होता है आपके लिए। और इसीलिए जब कोरोना होता है तो सबसे पहले लोग जो है क्या चेक करते हैं, वो ऑक्सीजन चेक करते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। और ऑक्सीजन आपके पास आएगी कैसे? जब तक आप दीर्घ श्वास नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी आपके इसमें। और इसलिए प्राणायाम करना आवश्यक है। भीड़ भाड़ के इलाकों में आप मत जाइए, चोरी छुपे सिनेमा घर में मत जाइए, आप तेल के पदार्थ आप मत खाइए। 2 साल तक जरा आप अपने आप को संयम में रखिए, कंट्रोल में रखिए। चोरी छुपे सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये अच्छी बात नहीं होगी। और यही बात जो है वो आपको संस्कृति के माध्यम पर ले जाएगी। आप कभी ध्यान रखिए, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, ये जो 5 अक्षर है, जब तक आप मुंह नहीं बंद करेंगे आप ये नहीं बोल सकते हैं। प बोलने के लिए दोनों ओठ बंद करना पड़ते हैं। त, थ, द, ध, न, ये जो 5 अक्षर है, जब तक आपकी जीभ आपके दांतों के साथ नहीं लगती है, आप इनको उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छा उच्चारण सीखिए। सब बड़ी देर है। अच्छा उच्चारण कीजिए, अच्छी बात बोलिए। और जो व्यक्ति संस्कृत बैठता है, संस्कृत सीखता है, उसका उच्चारण अलग होता है। यूरोप में आज भी प्राइमरी शिक्षा जो बच्चे लेते हैं उनको संस्कृत पढ़ना कंपलसरी है। 7 राज्य ऐसे हैं यूरोप में जहां प्राइमरी स्कूल से संस्कृत पढ़ाई जाती है, क्योंकि संस्कृत बोलने से आपका उच्चारण अच्छा होता है। जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जाती है क्योंकि वहां आरोग्य, आयुर्वेद जो है वो जर्मनी से निकलता है।
गणित के लिए आपको संस्कृत आना आवश्यक है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए है कि ये जो है ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है। आप यहां बैठे बैठे अपने माताजी से बात कर सकते हैं, पिताजी से बात कर सकते हैं। क्या ये पहले संभव था? आप यहां बैठे बैठे पूना में बैठ करके आपका जो मित्र होगा अमेरिका में उससे बात कर सकते हैं आप। ये संभव कैसे होता है? ये टेक्नोलॉजी के आधार पर ही संभव होता है। सो टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। अभी टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट जिसको हम बोलते हैं वो जो है वो आवश्यक बन गया है। ऑनलाइन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, आप मेरे केवल चेहरा दे सकते हैं कि मैंने टाई के नीचे, कोट के नीचे क्या पहना है, आपको क्या पता है। लेकिन जब मैं आपसे प्रत्यक्ष में बात करता हूं तो आपको मेरा कद, मेरी हाइट, मेरा रंग, मेरी हुलिया सब कुछ पता लग जाता है। यही बात औद्योगिक क्षेत्र में भी लागू होती है। आप देखिए जो बच्चे कंप्यूटर पे काम करते हैं, अब वो अंडरवियर में बैठा हुआ है या लुंगी पहन के बैठा हुआ है, कंप्यूटर आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने टाई लगाई है कि सूट लगाया है। वो तो जो आपने कमांड उनको दे दिया वो करता है। लेकिन यही काम अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं तो आप लुंगी पहन के नहीं जा सकते हैं, वहां तो आपको अच्छे कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। आप सेल्स मैनेजर हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, तो इसलिए केवल आईटी वाले जो होते हैं, केवल वो लोग जो होते हैं, आप देखिए वो बरमूडा पहन के निकल जाते हैं, चप्पल पहन के निकल जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कॉलेज में बताया जाएगा कपड़े ठीक से पहनिए, शर्ट टाई ठीक से पहनिए, साड़ी ठीक से पहनिए, अच्छे वस्त्र धारण कीजिए। अच्छे का मतलब वस्त्र महंगा नहीं होता है। जो कुछ भी आप पहनते हैं वो साफ हो, सुथरा हो, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से बोलते हैं। कई बार आप लोग मजाक में बात करते होंगे, गधे की तरह क्या बात करता है वो आदमी, गधे की तरह बात करता है, ये कैसे बताया आपको? वो तो आदमी की भाषा बोल रहा है ना, लेकिन जो बात कर रहा है वो गधे की तरह है, बुद्धिमत्ता से बात नहीं करता है वो। इसलिए जो भी आप शब्द उच्चारण करते हैं, जैसे भी आप वार्तालाप करते हैं, अच्छी भाषा बोलिए। और ये आपको इस कॉलेज में सिखाया जाएगा। शिक्षा के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है इस शिक्षण क्षेत्र में। बाकी जगह भी मैं जाता हूं पढ़ाने के लिए, मेरे लेक्चर वहां होते हैं और मैं देखता हूं, वहां पर मैं इंटरव्यू लेता हूं। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू होते हैं उनका मैं साक्षात्कार लेता हूं। और जब पे बच्चे या बच्चियां परीक्षा पास करते आते हैं इंटरव्यू के लिए, उनके चाल से हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति अधिकारी बनने के लायक है या नहीं है। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो भी उतनी आवश्यक है और ये आपको इस कॉलेज में बताया जाएगा। मैंने आपको बताया कि जैसे हम बोलते हैं कि स्वदेशे पूज्यन्ते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। आज पूरे विश्व में भारतीय विद्वान बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति जो महिला हैं वो भारतीय मूल की हैं। 5 मंत्री वहां हैं भारतीय मूल के। बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां जो हैं उसमें भारतीय लोग हैं। ब्रिटेन की जो गृह मंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं। कनाडा में 6 मंत्री हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर लेकर के वो भारतीय मूल के हैं। मलेशिया का जो रक्षा मंत्री है वो भारतीय मूल का है। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि भारतीयों में काम करने की क्षमता है। तो आप ये उम्मीद मत लगाइए कि मेरा चाचा वहां काम करता है मुझे नौकरी दिलवा देगा। आपको नौकरी दिलवा देगा लेकिन आप वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप सीढ़ी के माध्यम से, सीढ़ी लगा करके आप दीवार पर चढ़ सकते हैं, लेकिन सीढ़ी के माध्यम से आप आसमान में नहीं उड़ सकते।
उसके लिए आपको अपने पंख तैयार करना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता तैयार करना पड़ेगी, और वो भी बात यहां आपको सिखाई जाएगी। ये आप ध्यान में रखिए। और इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि शिक्षण करना एक बात है, आचरण बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आचरण विहीन व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं होता है। अभी मैडम ने आपको बताया मेरे बारे में, मैंने खुद बताया कि जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो राष्ट्रगीत नहीं था। गांव में हम लोग पढ़ते थे बच्चे, एक पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। उस पूरे स्कूल में केवल एक शिक्षक थे हमारे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक। उसी पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। उसी पेड़ के नीचे पढ़े हुए 2 विद्यार्थी भारत के राजदूत बन गए। उसी पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी भारत के सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना, और उसी पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी आज भी ना केवल हिंदुस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्मगलर है। सबसे बड़ा स्मगलर है वो। रात को घर में नहीं सोता है वो। उसके बच्चे उसको बाप नहीं बोलते हैं। उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया है। उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास शांति नहीं है। तो ये आपने निर्धारित करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसकी संपत्ति करोड़ों की, हम लोग मिलते हैं कई बार, छुटपन में स्कूल में पढ़े थे तो मिलते हम लोग, बात करते हैं। लेकिन वो बोलता है यार मैं तो कुत्ते की तरह घूमता हूं। तो हमारे गुरुजी उस समय उनको बोलते थे, उस बच्चे को, तू बड़ा होकर के कभी रात को अपने घर में नहीं सो पाएगा, ना तू खुद सोएगा ना घर के लोगों को सोने देगा। और वो उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। इसलिए अच्छा आचरण कीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ में बैठिए। आप अपना नॉलेज जो है किसी दूसरे के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन दूसरे के नॉलेज के आधार पर आप स्वयं बुद्धिमान नहीं बन सकते। इस वास्तविकता को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। अगली 2-3 बातें मैं आपसे बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपको सुनने की इच्छा ना हो। आपको नौकरी कौन सी करना है ये आपने तय करना पड़ेगा। यदि आपको मार्केटिंग में बनना है, अभी ये कोरोना का जो काल चल रहा है पिछले 2 साल से, मार्केटिंग में जिन बच्चों ने काम किया है, MBA किया है, उनको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। जिन्होंने मार्केटिंग के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करना किया है, उनको अच्छी तनख्वाह मिल गई है। जिन्होंने शिक्षण लिया है साथ में, उनको अच्छे काम मिल रहे हैं। तो काम बहुत हैं, काम की कम नहीं है। भारत में या विश्व में काम करने वालों की कमी है। तो काम वही करेगा जो काम करने के लायक बनेगा, और काम करने के लायक आप तभी बनेंगे जब आपने अच्छा शिक्षण लिया हो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यदि आपने इस बात को भूल दिया या तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इतना मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। गवर्नमेंट की नौकरियां कम हो रही हैं दिन ब दिन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक व्यक्ति 3-3 काम करता है। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो बैंक की नौकरी पाने के लिए 12वीं पास होना काफी होता था। आपने 12वीं का एग्जामिनेशन पास कर लिया, आपको बैंक में क्लर्क की नौकरी बन जाती थी। धीरे धीरे समय बढ़ा। उसके बाद में उसी काम को करने के लिए ग्रेजुएशन की नौकरी थी, ग्रेजुएट होना आवश्यक हो गया। आज बैंकों में आप जाइए, काउंटर पे जो काम करते हैं वो MBA विद्यार्थी हैं। MBA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये विद्यार्थी काम कर रहे हैं। काम वही है लेकिन शैक्षणिक योग्यता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से उनको आज लाखों का नहीं करोड़ों का व्यवसाय करना पड़ता है। और यही आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 1981-82 के दौरान में मैं पाकिस्तान की सीमा पर था।
तब वहाँ हिंदुस्तान का टेलीविज़न सेट नहीं आते थे, वहाँ पर पाकिस्तान का टीवी हम लोग देखते थे वहाँ। और उसमें एक सीरियल आता था, उसका नाम था धूप छाँव। धूप छाँव, उसमें एक बड़ा भारी उद्योगपति बताया है और दूसरा उसका बेटा बताया है, और वो बेटा उद्योगपति के साथ काम करता था। तो एक बेटे ने उसमें बताया, उनका संवाद मैं सुन रहा था, अब्बू दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो बाप ने बोला, बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल कठिन काम होता है 1 लाख रुपया कमाना। जिस दिन तू 1 लाख कमा लेगा, बाकी के लाख अपने आप बनते जाएंगे। तब लाख की कीमत होती थी, अब करोड़ों की भी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि वो 1 लाख रुपया कमाते 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 आपको इतना अनुभव होता था कि बाकी के लाख अपने आप कमाते थे। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मेरा अपना बेटा जिसने बीटेक किया, एक विदेशी कंपनी में काम किया, एमबीए किया उसने, तो जब कंपनी ने उसका कॉलेज प्लेसमेंट हुआ तो उसने पूछा उनसे कि आप कहाँ नौकरी करना पसंद करेंगे, आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक वैकेंसी है वो बंबई में है, दूसरी पूना में है और तीसरी भुज में है। ये 2002 की बात थी। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो उसने मेरे को फोन किया कि डैडी ये 3 ऑप्शन है, मैं क्या बोलूं? तो मैंने बोला, बेटा तू भुज के लिए जाना। तो गुस्सा हो गया, अरे डैडी आप क्या बता रहे हो? मैं बोला, तूने फोन किया है, सिलेक्शन तेरा हुआ है, मेरा नहीं हुआ। तुमने मुझसे ये पूछा है मैं कहाँ जाऊं, तुम भुज में जाओ। भुज में गया, वो कंपनी को बड़ी खुशी हुई। और उस समय भुज में बड़ा भारी अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। उस भूकंप से पूरा का पूरा शहर जो था वो बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। एक झाड़ के नीचे वो सोता था 12 दिन। उसके बाद तंबू में सोना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते उसकी कंपनी ने फिर वहां पर मकान वगैरह बनाए और पूरा शहर बनाया वहां पर। वो जो अनुभव है वो उसको आज भी काम में आता है। वो जिस बिल्डिंग में जाता है वो खड़ा होकर के बता सकता है कि इस बिल्डिंग के फलाने कोने में इसकी नींव जो है वो कमजोर है। और वो मुझसे बोलता है कि डैडी आपने मेहरबानी की, मुझे भुज में भेज दिया। मैं किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा होता तो मुझे ना कंप्यूटर का पता लगता, ना ऑफिस का पता लगता, ना इलेक्ट्रिसिटी का पता लगता। और आज उसकी तनख्वाह लाखों रुपए महीने की है। वो खुद बोलता है, मैं इससे लूंगा वरना मैं काम आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं कितना बड़ा हूं, मेरा बेटा कितना बड़ा है, लेकिन यदि आपने शुरुआत में कष्ट किया तो आपके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अगर यही सोचते रहे कि मैं तो नौकरी तभी करूंगा जब मुझे कम से कम 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, आप सोचते ही रहिए। और जो व्यक्ति जितनी छोटी कंपनी में काम करता है उसका अनुभव उतना ही बढ़ता जाता है। मान लीजिए आप लार्सन ट्यूब्रो में चले गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में चले गए, तो आप पूरी गाड़ी का एक नट बन के रह जाएंगे। लेकिन वही काम आप एक वेल्डिंग की दुकान पे काम करते हैं तो आपको पूरी की पूरी बुद्धिमत्ता आएगी। इसलिए कभी आप छोटी कंपनियों से घबराइए मत जब प्लेसमेंट होता है। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये जो कंपनियां काम कर रही हैं आजकल, मैं कई छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं अमेजॉन में काम कर रहे हैं वो लोग, आपकी उम्र के, और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। इसलिए मेरा आपसे और आपके माता पिता से निवेदन है कि ये केवल स्वप्न मत देखिए कि मेरे बच्चे को कम से कम 50,000 तो तनख्वाह मिलना चाहिए। शुरुआत में नहीं होगा वो, लेकिन जिस दिन वो 20,000 पे काम करता है, 15,000 पे काम करता है, अगर उसने एक अच्छा काम कर लिया तो 1 साल में वो उसे ही कंपनी उसकी तनख्वाह 20,000 कर देगी, क्योंकि आपने नॉलेज हासिल किया है। कॉलेज आपको तैयार करेगा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं है, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, व्यवसाय परिस्थिति के लिए। क्या करना है ये आपने निर्धारित करना है। भारत में कई कॉलेज है, झूठी बात करते हैं, उनके झूठे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपको हम 6 महीने में काम दिला देंगे।
वो 6 महीने में आपको काम नहीं दिलाएंगे। वो 6 महीने तक आपसे काम कराएंगे और फिर आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। जो आप काम करते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत वो पैसा दे देंगे। वो बोलते हैं हम गारंटी देते हैं आपको। ये झूठे बहकावे में मत आइए आप। ये शिक्षण के माध्यम से, शिक्षण के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने सही निर्णय लिया है कि आपने IIBM को अपनी शिक्षा का माध्यम चुना है। अगली बात जो है, जो आपने ध्यान में रखना है, यदि आपने दौड़ में पहले आना है, अभी आप देखिए जिन बच्चों को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है वो छोटे के थे, झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं। वो झारखंड बिहार में रहने वाले हैं। एक के पिताजी तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, एक की माँ जो है वो बर्तन काम साफ करती है। उनकी बच्चियों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। वही गोल्ड मेडल या वही ब्रॉन्ज मेडल अगर आप सोनार के पास लेके जाएंगे तो वो बोलेगा हम ये 15 रुपए में खरीदेंगे आपसे, क्योंकि वो गोल्ड मेडल जो है वो सोने का बना नहीं होता। तो वो उसकी कीमत खाली इससे लगाएगा कि वो कितने में बिकेगा। लेकिन उसी गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए भारतवर्ष ने उन बच्चों पर 15-15 करोड़ रुपया खर्च किया है। और जिस दिन उसको सिल्वर मेडल मिला, हरियाणा सरकार ने उस बेटी को 6 करोड़ रुपए का चेक भेज दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए का चेक भेज दिया। करोड़ अपने आप बनेंगे यदि आपने वो मेडल हासिल किए, और वही करोड़ आप भी बनाएंगे यदि आपने बुद्धिमत्ता हासिल की। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उस गोल्ड मेडल की कीमत सुनार के पास नहीं है। उस गोल्ड मेडल की कीमत जो है वो उस पारखी के पास में है जो उस इवेंट को जानता है। आपको कॉलेज में गोल्ड मेडल मिलेगा, यूनिवर्सिटी में मिलेगा, तो शिक्षा के आधार पर मिलेगा आपको। और इसीलिए आप उसके लायक बनिए ताकि आपको सम्मान मिले और आपको अच्छी दीक्षा मिले। शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का मिलना भी उतना ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में जो रामायण पढ़ते हैं वहां बोलते हैं, गुरुकुल गए रमन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। रामचंद्र जी राजा के पुत्र थे, लेकिन उनमें घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई नहीं आता था। उनको खुद को वहां पर जाना पड़ा, और जहां सब बच्चे थे उनके साथ उनको रहना पड़ा, उनके साथ बैठना पड़ा। तो केवल आप ये मत कह सकिए कि मेरे पिताजी के पास तो इतने करोड़ रुपए हैं, वो किसी को भी खरीद लेगा। वो खरीद लेगा किसी को भी, लेकिन बुद्धि नहीं खरीद पाएगा। बुद्धि आपको अर्जित करना पड़ेगी। बुद्धि आप खरीद नहीं सकते हैं, और वो अर्जित करने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करना आवश्यक है। और एक बात होती है, एक कहावत है मैनेजमेंट की है, वो इफ यू विश टू वॉक फास्टर वॉक अलोन। यदि आपको तेज जाना है, रफ्तार से जाना है, तो आप अकेले जाइए। बट इफ यू विश टू वॉक लॉन्गर, यदि आपको दूर तक की दूरी तय करना है, वॉक टुगेदर। एकत्रित होकर के काम करिए आप। ये मानसिकता आपको बनाना पड़ेगी। वर्किंग टुगेदर, जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं, आपको सबके साथ काम करना पड़ेगा। और इसलिए एक कहावत होती थी, ओह मैनेजर यू मैनेज योरसेल्फ। यदि आपने स्वयं की बुद्धिमत्ता, स्वयं का शिक्षण, स्वयं का चरित्र मैनेज नहीं किया, तो आप ब्रांच मैनेजर बनेंगे कैसे? तो पहले खुद को मैनेज कीजिए। या आपने फैकल्टी बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, चांसलर बनना है। आज मैं सिक्किम विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, चांसलर हूँ मैं। और मेरा जो सिलेक्शन था वो भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने किया। किस आधार पर? शिक्षण के आधार पर। और देयरफॉर, ओ मैनेजर यू मैनेज योरसेल्फ,
देन ओ टीचर यू टीच योरसेल्फ। जो फैकल्टी होती है, जब आप फैकल्टी बनेंगे, यदि आपने स्वयं को नहीं पढ़ाया, स्वयं खुद नहीं पढ़े, तो आप दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। और दुनिया एक तेजी की रफ्तार से बढ़ रही है, इसलिए आपको उसी रफ्तार से पढ़ना पड़ेगा। ओ रूलर यू रूल योरसेल्फ। हे राजा, तू पहले राज्य करने की कला सीख। पहले स्वयं के ऊपर तू विजय प्राप्त कर, तभी आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। एंड ओ लीडर यू लीड योरसेल्फ। आप तमाम लीडर हैं। जब तक आप स्वयं के ऊपर लीडरी नहीं करेंगे, आप दूसरे के लीडर नहीं बन सकते हैं। एंड योरफॉर जो आप हैं वो इसी शिक्षण के माध्यम से काम करेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इस विश्व में आने वाले समय में शिक्षा और अच्छी शिक्षा, यही एक पर्याय आपके पास है। जो मेरा मित्र जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा स्मगलर है, उसके घर में पैसे का हिसाब रखने के लिए 3 कंप्यूटर लगे हैं। 3 कंप्यूटर। एक हिसाब लगाता है नंबर 2 की कमाई कितनी हुई, दूसरा हिसाब लगाता है भारत में कितना पैसा है, और तीसरा कंप्यूटर हिसाब लगाता है बाहर कितना पैसा है। लेकिन शाम को एक ही रोटी खाता है। तो ये तो आपने निर्धारित करना है। नींद की गोलियां खाता है, 11-12 किस्म की दवाइयां उसको लेना पड़ती है, डॉक्टर इंजेक्शन आके देते हैं। मैं बोला यार तू कुत्ते की तरह क्यों रहता है। अरे यार क्या बताएं, अब तो जिंदगी निकल गई। तो ये आपने निश्चित करना है, ये आपने निर्धारित करना है। और इसलिए आप अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे शिक्षार्थी बनिए। विद्यार्थी तो आप है ही हैं, पर आप शिक्षार्थी बनिए, अच्छे कर्मयोगी बनिए। भारत की जो अभी नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें थोड़ा सा मैंने काम किया था, तो मुझे थोड़ा पता है। अपनी राष्ट्रीयता के बारे में पता कीजिए, तभी आप जो है आप सफल होंगे। यदि संभव हुआ तो मैं फिर एक बार आऊंगा आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज में, तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर ऑन माई बिहाफ एंड बिहाफ ऑफ द एंटायर कॉलेज, आई वेलकम यू टू IIBM। यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं, जो प्रबंधक हैं, उसमें सेना के लोग काफ़ी हैं। तो जो आपका डिसिप्लिन है वो संभलता है। सैनिकीकरण आपको नहीं है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप आर्मी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए। अगर आप जाना चाहते हैं जरूर जाइए, आपको मदद करेंगे। लेकिन आप अच्छे एक IAS अधिकारी बनिए, अच्छे ब्रांच मैनेजर बनिए, अच्छे मार्केटिंग मैनेजर बनिए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनिए। ये शिक्षण आपको हम जरूर देंगे। अच्छा आचरण बनिए। MPSC, स्टेट पुलिस, स्टेट सर्विसेज में आप जाइए, आपको फायदा होगा, आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो मैं आपको आपके शुभ भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आपको ईश्वर सुखी रहे, सुखी रखे। आपके माता पिता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बच्चों की ज्यादा चिंता मत कीजिए। आपके बच्चे हमारे लिए भी उसी प्रकार हैं, हमें भी उनकी उतनी चिंता है। अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी आप रहते हैं, लोगों को बताइए कि महाराष्ट्र में पूना नाम का जो शहर है, वहां ऐसी संस्था है जहां हमारे बच्चों को बच्चों की तरह ही रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। उनके मुंह में हम जबरदस्ती दूध नहीं डाल देंगे, वो समय चला गया। लेकिन उस शिक्षा का, उस अन्न का, उस खाने का महत्व समझाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। यू डू वेल इन लाइफ, स्टडी वेल, sleep well, eat well, and play well. Behave well. Respect your faculty. Respect your management. Unless you respect the people, nobody will respect you. So God bless you. Take care. All the best to you. Thank you so much.
Thank you so much, sir, for such a wonderful and enlightening session for the students. I have few questions. If you permit, I may ask those questions to you. The first question is, sir, what do you think about new education policy? One of the student has asked this, and how it is going to affect future generation and Naya India. So far, most of the education given to Indian student was to praise somebody else. When I was a young child, till class 12, we were taught Alexander the Great, Akbar the Great, so and so the great. But when I went to college, then I realized कि क्या भारत में कोई ग्रेट आदमी नहीं हुआ जो हम अकबर को महान करते हैं, अलेक्जेंडर को ग्रेट बोलते हैं. दे माइट हैव बीन ग्रेट, बट इंडिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो हमारे लिए ग्रेट बन रहा है. महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, अजीम प्रेम जी, धीरूभाई अंबानी, ये भी तो सब ग्रेट ही है ना. तो जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के बारे में, उसका इतिहास, उसकी राष्ट्रीयता जानना आवश्यक है, पहली बात. दूसरा है कि पढ़ने के बाद में आपने क्या करना है ये आप पर थोपा नहीं जाना चाहिए. आप निर्धारित कीजिए, आप निश्चय कीजिए. तीसरी बात है कि आज का जो विद्यार्थी है वो परीक्षार्थी बन गया है. परीक्षा में पास करो, परसेंटेज में मार्क लो. अभी जो दिल्ली में बड़े बड़े कॉलेज हैं, श्री राम कॉलेज, सेंट स्टीफन, यदि आपको 98% मार्क नहीं मिले तो आपको वहाँ एडमिशन ही नहीं मिलता है. तो द परसेंटेज ऑफ मार्क हैज बिकम ए क्राइटेरिया फॉर योर नॉलेज. जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, आवश्यक नहीं है कि उसको इंग्लिश आना जरूरी है. जो ब्रिज बनाने का काम है वो हिंदी में बोल के भी कर सकता है. जो मार्केटिंग का काम है, जरूरी नहीं कि कोई इंग्लिश ही होना चाहिए. हाँ, जिन विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं आप, उन्हें उन कंपनियों में जो उनके मालिक हैं, जिस राष्ट्र की वो कंपनियां, उनकी भाषा आपको आना चाहिए. तो केवल इंग्लिश ही माध्यम नहीं है, उसके साथ आपको जर्मनी, जापानीज, कोई ना कोई भाषा सीखना चाहिए. बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, छोटी छोटी बातें, क्योंकि भाषा के माध्यम से आप आत्मीयता पढ़ते हैं. तो इन तमाम बातों का समावेश जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है. कुछ लोग ऐसा झूठ बोलते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ये एक प्रकार के धर्म के लिए है. धर्म का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है. शिक्षा ही हमारा धर्म है, शिक्षा ही हमारा कर्म है, शिक्षा ही हमारा अर्थ है, शिक्षा ही हमारा मोक्ष है. ये इस पॉलिसी में है. Sir, the next question is asked by one of the students. That is, do you think standardized testing is the most effective way to judge learning? The reason being, as I mentioned to you, कि आज का जो विद्यार्थी है वो परीक्षार्थी बन गया है. Percentage counts more than the knowledge. Correct. कितने परसेंटेज मिले हैं. So therefore, standardization, how do you judge a standard? I may be just 60% marks earner, but I may be more knowledgeable. So therefore, only the percentage of mark is not the criteria to judge the standard of a candidate. उसकी जो योग्यता है वो केवल मार्क के आधार पर नहीं होगी. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और उसी को धीरे धीरे अमल में लाया जाएगा. क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में मान लीजिए, आपको कॉलेजों का नाम नहीं लेता चाहता हूँ जी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स वगैरह है, 98% के नीचे तो आपको वहाँ एडमिशन मिलते ही नहीं है. यदि आप 98% के बाद में आपको मिलता है तो आप तो वहाँ पढ़ा सकते हैं. पढ़ने की आवश्यकता क्या है फिर आपको? राइट. So getting mark is not the criteria, but getting knowledge is more criteria. Sir, you have talked a lot about not using the mobile phones, but in this corona time, people are dependent on internet and mobiles a lot. So what is the most effective way with which students can avoid using mobile phone and still stay connected? It is asked by, again, one of the students. To communicate with each other is a different thing. Right. Talking to, like, for example, online education. Right. I've seen
play school children or class 1, 2, 3, my own granddaughter, she keeps a mobile and the teacher is teaching. Right. Now father has picked up a laptop for her. Hmm. But when the parents are not watching, what does the child look at mobile phone? She or he will see all sort of nonsense which is going on Correct. through that mode. That is the problem. Yes, sir. That is the problem. Hmm. So therefore, there will be a need that the mobile phones which are to be used by, say, a student up to class 10, they should not have certain applications with them. Today, children cannot do the calculation. वो कैलकुलेटर निकाला टक 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 किया हो गया उनको गणित नहीं आ रहा है. Correct. The same mobile can be used for correction of spelling mistakes because when you put the word SHE उसकी जगह आपको उन्होंने SHA कर दिया तो वो 2-3 ऑप्शन देता है. तो 3 में से आप पिकअप कर लीजिए. So it is the positive use of that place. So mobile phone usefulness for the education is okay, but misuse of mobile phone to communicate with those people who don't even know you, you don't want to talk to you on the aspect which are not good for you, that use is bad. Right. If you are traveling by train, madam, you see some of the young people, I watch them sometimes, now I stopped going by train. They will put on the bed sheet or something और रात को मोबाइल फोन लेके पता नहीं क्या करते रहते हैं. We know what they are doing. The parents are sleeping in some other room. The children are pretending to sleep and they are watching mobile phone. Now that is wrong. Right. Yes. That is wrong. Yes. So therefore it is also for the parents, you don't give them a mobile phone which has got all the apps. Remove those apps. Right. My granddaughters are using mobile phone. They are in class 4. They reduce the apps. Those apps are not required. Otherwise, I am 200% sure, even if they don't know, by mistake they will put it on. And you learn long things faster than learning the good things. Correct. Correct. Yes, sir. Absolutely. Right. Sir, the next question is, can you suggest some permanent changes in our lifestyle, looking at the present scenario, so that we can be, or these students can be more focused and successful in their lives? First and foremost is your food habits. Suppose you are eating in your hostel and you know that you will take only 2 chapatis. Right. Don't put 4 in your plate and then throw away them. I've seen a lot of students in the hostel. They say, हम तो पैसा देते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? हम 2 उठाएंगे, 4 उठाएंगे, आप 6 खाइए और वो खाइए, फेंकिए मत. Because if you don't learn how to save food, you can never learn how to save the food energy. You can never learn the value of food. When you go to a hotel, when you order, you see, madam, if you find out, the starters which you order are more costly than the main food. Correct. Yes, sir. Because starters, you are feeling hungry. तो ये भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ. And by the time you finish 3 starters, your hunger is gone. And then they say, आपको 150 रुपए की हम पूरी थाली दे देंगे. They know it, you will not be able to eat. So they only bring that much you can eat. So they are making money. Right. Now let us take the same thing in other aspects of life. Your day-to-day curriculum, your own character building, your own habits, the way you speak. If you start speaking mobile language, you will not reach anywhere else. I get a lot of messages on WhatsApp. See you. They will only write C and you. Then you will say you are. Is this the language which will give you the job? ILU. They don't even say I love you. My son was doing MBA and he was having my mobile, and he used to get a message ILU. He was an MBA student. By mistake, his mobile got left with me for about 2-3 days. And I used to get the same message. So I asked him कि बेटा ये क्या होता है? He said, डैडी आपके काम का नहीं है.
Then I asked my neighbor's granddaughter. She was studying in Ferguson College here. I said, "Beta, what is the meaning of this?" He said, "Abba, in Marathi it means grandfather." "Abba, ये तुमको आता है?" बोले, "हाँ." बोले, "आजी को मालूम है that your grandmother knows that you are getting these messages?" I say, "I don't know. I never shown her." The wrong message is you start accepting, you start getting. There is a artificial intelligence inbuilt into your mobile phone. If you switch on the mobile phone in the morning and you start listening to bhajan on YouTube, try it for 5 days. 6th day, that bhajan will come automatically on YouTube, because there is an artificial intelligence built up. The same artificial intelligence can misuse, it can abuse you also, and can destroy you also. That is the point. So that is the way I think we should look at them, and this will have to come. I would request you and your colleagues, keep hammering this point in the students at least once in 15 days. I go to a number of colleges. I had to remove 2 teachers from a college. I'm a chairman of a society in Nashik. We are running a big college. 2 assistant professors were speaking in mobile phone in the class. I told them, don't come to this college from tomorrow morning. If I am talking to somebody while I'm teaching, what right do I have to tell the student not to switch on the mobile phone? So it has to come from both ways sides. So character building is a 2-way traffic. It's not 1-way traffic. Right, sir. Sir, what these students should do for self-discipline? Self-discipline has to be inculcated, ma'am. Nobody can make you discipline. For example, if I am going on a motorcycle or a scooter, and I know that when the amber light comes, I must switch off, slow down. The moment the red light comes, I must stop. But if I hoodwink, I jump the signal without seeing, and I meet with an accident. Whom do I blame? Do I blame the traffic constable? Do I blame the signal? Or do I blame myself? So self-discipline is part of our own way of life. If we are taught that walk on the left side of the road, before crossing the road, look left and look right, and then you cross. हम बच्चों को सिखाते हैं घर में. So similarly, why? This is self-discipline. Otherwise, normally the arrogant people ask, तेरे बाप को दिखाई नहीं पड़ता क्या? आंख बंद है क्या? अंधा हो गया क्या? अंधे तो आप खुद हो गए ना, उसको क्या अंधा बोलेंगे आप? So self-discipline comes from within. It cannot be thrust upon. ये कूट के भरा नहीं जाता है, बताया जा सकता है. And that is what the students should also remember. They'll have to make themselves disciplined. If they are going to a hostel lodge to eat food, they must wash their own hand. And what is the harm if they wash their own plate? What is the harm? What is the harm if they take 1 chapati less rather than throwing half a vegetable, half a chapati less? There are hundreds and hundreds and hundreds of people in India who don't even get 1 meal. Just because you are paying hostel fee, it doesn't mean you waste things. Because the same waste you will do when you get a job. And the same waste you will do when you get married. अपनी पत्नी को बोले कि तेरा बाप का नहीं आता खाना नहीं बनाती ठीक से, तुझे पता नहीं मैं कमाता हूं. Same habits get inculcated. So it has to be built up over a period of time. Thank you very much. All right, sir. Thank you so much. It was such a wonderful session and it was such a pleasure to hear you. There's so much to learn from you. Sir, any last words for the students before leaving? My last but one word is remain a student all your life. जिज्ञासा, उत्सुकता ये होना चाहिए. Right. Don't think just because I have done my MBA, I become fully qualified. Just because I joined a company, I am now fully knowledgeable. So remain a student all your life. Remain जिज्ञासा जो है, जानकारी की जो जिज्ञासा है, remain like Dr. Kalam. Become Dr. Kalam. He used to stay on a seashore. झोपड़ी में रहते थे वो.
He used to go and sell newspaper in the morning, and he became the president of India. He never tried for presidentship, never. He wanted to be a missile scientist. I worked with him. I used to meet him twice a month because I was in the army and we were working on missile technology. Right. So he used to tell me sometime that I never thought I'll become a scientist. I just wanted to be a teacher. And that's why after retirement as a president, he used to teach. He used to teach the things. And that is what we should try to aim at. Don't become Vijay Mallya. Don't become Neeraj Chokshi. Don't become Chanda Kochar. Don't become people like my friend who is staying in Bombay, who is the richest man in Asia, but the biggest smuggler in Asia. Don't become like that. You call me to speak to your student or our student. I've been made chancellor. They must have seen something in me. I don't know what they've seen. They didn't call anybody else. So जो ढूंढने वाले हैं वो ढूंढ लेते हैं. Right. व्यक्ति जो है वो ढूंढा जा सकता है, पर आप में गुणवत्ता होना आवश्यक है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुणवान हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना किसी ने. और मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया. I never applied for the thing. I never applied for the chancellorship. There are no applications involved. Vice chancellor के लोग apply करते हैं. That much I know because I take their interviews also. So I'm aware of that. Chancellors are appointed. Vice chancellors are selected. So there's a difference between selection and appointment. To be selected, you have to have different things like that. And to be appointed, you must have good qualities, your standing, your character, and everything. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, sir. We will surely have a physical session from you once the students will be in campus. In the end, I would just like to mention that जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं. On that note, thank you so much, sir. Thank you.